ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 158 रनों का लक्ष्य केवल 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, वो भी 16.3 ओवर में। कैसे हुआ ये कारनामा, जानने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। स्वागत है आपका। शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से सीधे दिल्ली तक धमक पहुंची है स्टोइनिस की, क्या कहेंगे खन्ना साहब? बहुत ही आतिशी पारी। 18 गेंदों में मात्र उन्होंने चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी, जो एक समय पे लग रहा था कि शायद श्रीलंका कहीं आज शॉक ना दे दे ऑस्ट्रेलियंस को, लेकिन उसने सारे डाउट क्लियर कर दिए। और जो रनों की जो रफ्तार उन्होंने बढ़ाई, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो गेंदबाजी बहुत पोटेंट लग रही थी, टॉप पे लग रही थी, कि मैक्सवेल को भी जो है श्रीलंकाई जो सीमर्स थे उनको खेलना मुश्किल हो रहा था, कि एक ओवर में 2-3 गेंदें वो बीट हो गए थे, एक मुंह पे लगी उनके। तो वहाँ पे आके स्टोइनिस ने, और राजा मेरे को कह रहे थे कि डेविड और उनकी बात हो रही है, बट मोस्ट डेंजरस प्लेयर जो है वो स्टोइनिस है, और उन्होंने करके दिखाया क्यों ऑस्ट्रेलियन कोचेज और कैप्टन और ऑपोजिट टीम्स उनको फियर करते हैं। एग्जैक्टली। आउटस्टैंडिंग बैटिंग एंड रन चेज। फिंच जो आमतौर पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं, वो मियर स्पेक्टेटर थे दूसरे एंड पे। And as I was saying initially also, Warner, everybody was looking forward to Warner's batting, but I guess things were differently planned for him. But right now, Raja, we shall go back to the presentation ceremony and see what's happening there. Have a go at the spinners. Yeah, just have a little look. We've got muscles in the house. Got the former great, of course, Darren Sammy, West Indies captain, handing over the Player of the Match award to Thanks, brother. Marcus Stoinis. Lovely to see you. Lovely to see you, D. Sammy. Good to see you, dear fellow. And of course, with you, just saying the equation, wanted to get it as quickly as possible, perhaps tonight. Yeah, once I got in, the plan was to just keep going. To be honest, I was really nervous today, being at home in Perth, a lot of family and friends here, so yeah, I was really nervous going into it, but really happy that we ended up putting on a bit of a clinic there. Marcus, what about your own fitness? I know you've had issues, side strains and what have you, and you play a lot of cricket. Mentally coming into this tournament? Mentally, I was nice and fresh. I had a little bit of time off looking after this side strain, but yeah, it's been sort of plaguing me on and off for a while now. But so far so good. I feel good bowling. Yeah, so it's good to be in this frame of mind. New surface, drop and pitch. What do you think about that surface out there? We played here the other day against England, and it was a beautiful wicket. This did look like it was doing a little bit more, especially with the new ball. But it's a beautiful ground, probably the best ground in Australia, if not the world, with the technology and the lighting going over here, and my home crowd. So, no, it's a beautiful wicket. 2 points was obviously maximum to secure, and then hey, listen, Friday. I know you don't want to think too far ahead. Got the dear old English very soon. Yeah, we wrap this game up and we look forward to playing England at the MCG. They're obviously a very good team, so we'll do our homework again, rest up, get on a flight tomorrow, and go from there. Onwards and upwards. Well played, mate. Thanks, Danny. Thanks. Thanks, mate. So this was the turning point here. Stoinis, he decided to take... Yes, Stoinis, it is. So a 7-wicket win for Australia and a solid net run rate boost. I think it's all thanks to Marcus Stoinis. So I think quite maybe predictable choice for this, Khannaji. Man of the match? Yes. Yeah, obviously. 18 balls, 59 and big boundaries, and he made it look so easy, 6 sixes, 4 boundaries. He didn't let us have our tea, you know. He was on fire. I wish people could have seen that, but that was fun too. Finch is a fantastic player, right? And he was just a mere spectator. Finch was struggling today. Yeah. He was kind of dancing. He was hopping on his feet. Was not looking the same player that we know him to be. But I think Stoinis and before him Maxwell made it so easy for Australia that they could win with about 3.5 overs left. और कन्या साहब, एक समय तो ऐसे लगा कि जैसे श्रीलंकन फील्डर चाहते ही नहीं है कैच पकड़ना, जिस तरह से उनकी फील्डिंग थी। आमतौर स्कायर स्पेशली, या तो ग्राउंड में कुछ रात को जो है जब ऊपर से गेंद नीचे आती है तो वो कर्ल करती है, और ऐसे लग रहा था शायद बटर उनकी फिंगर्स में लगी हुई है। पहला कैच बहुत शानदार लिया शॉर्ट कवर्स में वार्नर का। और गीतांजलि, आपका फेवरेट बॉलर 3 ओवर में 53 रन मार दिए उसको। बताइए। असरंगा बेचारा राइट आर्म लेग स्पिनर। तो जब बल्लेबाज, इट्स क्रूअल, दैट्स व्हाई आई से दिस फॉर्मेट इज क्रूअल, यू नो।
It is. कि न्यूजीलैंड ने उस दिन जो है जो शॉक दिया, तो आज कैंगरूज की दुम में आग थी, तो वो देखो आज स्टॉइनिस ने कैसे कमाल दिखाया कि रन रेट भी उनका ऊपर चला गया। और एक स्टेज पे जो सीमर्स थे श्रीलंका के, जैसी वो गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को जो है उनके नींद से जगा के रखा हुआ था। बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत ही शानदार सीम बॉलिंग कर रहे थे वो। फील्डर सपोर्ट करते तो और टफ हो जाता, लेकिन स्टॉइनिस मेड इट वन साइडेड। और हमारे जो कॉलर्स हैं वो हमें नींद से, स्टूडियो से, हर जगह से जगा कर रखते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421084 2342108501 कोड आप जानते हैं, मोबाइल से करेंगे तब भी और दिल्ली के बाहर से करेंगे तब भी। इसी के साथ एक कॉलर साथ हैं हमारे। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। अपना नाम बताइए प्लीज। मैम मैं विकास बोल रहा हूँ, पानीपत हरियाणा से। जी विकास, कहिए कैसा लगा आज का खेल आपको, हमारी कमेंट्री और फिर। यस मैम, खेल वाज अमेजिंग और बहुत मजा आया। अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर की तरह मैच चला और काफी अच्छा लगा। जी, खेल का मजा ये रोलर कोस्टर राइड में है, लेकिन बेहतरीन बात यह है कि आप सबको पसंद आ रहा है, हमें पसंद आ रहा है। ऐसे क्रिकेट देखते रहिए, कमेंट्री सुनते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ जी। अभी तो नहीं है आदेश कॉलर, लेकिन हमें पता है कि लबो लुबाब क्या होगा कॉल का। जी खन्ना साहब, 7 बॉलर्स आजमाए गए श्रीलंका की ओर से, और शुरुआत में तो जैसा आपने कहा कि तेज़ गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पर भी मिस्टर एक्स्ट्रा 17 थे और 10 वाइड गेंद। यार राज ने ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी की थी जब हम बैठे हुए थे कि जो एक्स्ट्रा बाउंस है और जिस तरह बॉल कुछ इन कट हुए, फिंच के अंदर से एकदम बॉल गई। पहला उन्होंने जो है हिट किया डेक को और थोड़ा बाहर निकला, और अगला गेंद जो है ऑलमोस्ट 1 यार्ड जो है वो कट करके अंदर आया। हमें इमरान खान की और वकार यूनुस की याद आ गई इन डकर्स की। तो मैं समझता हूँ कि परेशानी हो रही थी बल्लेबाजों को वहाँ पे। जो होम ग्राउंड पे स्टॉइनिस ने जो बैटिंग की है, मेड इट लुक इजी। कई लोग कह रहे थे, हम सुन रहे थे कमेंट्स जो मैदान में हैं या स्टूडियो में हैं, उन्हें पता है जो वहाँ खेले हुए हैं कि सामने की बाउंड्री छोटी है, बट स्टॉइनिस के छक्के देखो तो ज़्यादातर वो मिड विकेट उन्होंने जो है सेकंड थर्ड स्टोरी पे दिए उन्होंने। और एक तो शॉट जो मारा, मैंने वैसा शॉट नहीं देखा जैसे कोहली ने उस दिन मारा, और आज स्टॉइनिस ने बैकफुट पे स्क्वायर कट जैसे करते हैं, एंड ही हिट इट अबाउट 90 मीटर्स। राइट, सेकंड थर्ड स्टोरी जो है कवर पॉइंट के ऊपर जो है पावर हिटिंग जो आजकल ये देखने को मिल रही है, इट्स आउटस्टैंडिंग एंड यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम इट। दिस फॉर्मेट इज क्रूअल। गीतांजलि, आई कैन से आदेश, इसके अंदर तुम 7 गेंदबाज कह रहे हो, सारी टीमें जो है एक्स्ट्रा लेके चलती हैं, सबके पास बैकअप रहते हैं। जैसे एक सीमर इंजर्ड हो गया पहले ही ओवर जी में, जी जी, तो श्रीलंकन हैड दैट, बट फील्डर्स डिडंट सपोर्ट देम। राइट, आई थिंक इट कुड हैव बीन लिटिल टफ अगर वो 3 कैच जो इस लेवल पे वो आसान कैच है, बट दैट्स द वे क्रिकेट गोज, यू नो। Raja, as Khanna ji is saying, there's no formula as such to this particular T20 game, and anybody could really hit any time. And today we saw initially Sri Lankan's fielding was looking like, oh my gosh, what are they doing? But then one catch from Bandara was like awesome. That was right on the, I don't know what's the exact terminology, you would be able to tell better. Right but on I was the line is the safest. Right on the line, is it? Yeah, because I never want you to sound technically wrong. But yeah, I mean, these kind of things for us as spectators, they're amazing to watch. See, it became a bit of a curate set, good in parts and bad in parts. Right. You got to see a couple of great catches and you got to see a couple of drop chances as well. But at this level, if you're going to give batsmen the chance to continue playing the innings, what it does is it ensures that it ensured for Australia that they would not lose too many wickets up front. That Finch could continue till the end. He's a very lucky man. I mean, he was hopping. He was not looking a batsman. He was not looking the part. But that he continued till the end worked very well for Australia, because first Maxwell and then Stoinis could go out and play explosive strokes all around the wicket. And I think that made things very easy for them. One other factor that I think went against Australia was that their fast bowler, Binura Fernando, पहले ओवर में वो पेविलियन की ओर वापस जाना पड़ गया उनको, ओवर कंप्लीट नहीं कर पाए. I think they lost a good fast bowler, because on this track they were making the Sri Lankans, making the Australian batsmen struggle, and it was uncharacteristic. Right. It was great to see, great to hear. But unfortunately for Sri Lanka, they lost out on one good bowler. और जैसा कि राजा ने कहा कि मैक्सवेल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 12 गेंदों पर 23 रन, 2 चौके, 2 छक्के. शुरुआत उसने की जो है, थोड़ा सा जो अटैक किया श्रीलंकाई गेंदबाजों को,
जो उस समय तक लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए रन्स बनाने, तो 23-24 रन उसने 12 गेंदों में बनाए और बाउंड्री पे पकड़ा गया, वो भी 6 हो जाता, काफ़ी लंबी अच्छा कैच लिया बाउंड्री पे। लेकिन स्टॉइनिस वाज आउटस्टैंडिंग सिंपली, उसके लिए क्या वर्ड ढूंढा जाए, आतिशी पारी कह देते हैं। आतिशी पारी कह देते हैं। अच्छा राजा, बिकॉज अब मैचेस होंगे, वेयर एंड टेयर होंगे, अभी आपने बिनुरा की बात की है, इंजरीज भी होंगी, अभी एकदम ठुड्डिया गले पे बता रहे थे ना वो कि कैसे जलन होती है जब बॉल लगती है। कोई पर्टिकुलर इसका भी फॉर्मूला नहीं हो सकता कि कैसे इंजरीज आप कंट्रोल करेंगे? खेल में जो होगा वो होगा ही, विच इज़ एन अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ स्पोर्ट। अगर इंजरीज को हटा सकें गीतांजलि, दैट विल बी टेरिफिक इफ यू कैन रिमूव। लेकिन अब सीधे चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। तो बताएं, fair to say tougher against the new ball, the first sort of 7 or 8 overs when you're batting? Yeah, it was really tough with the new balls. There was a spongy bounce and it's too hard to get going. So even Finchy struggles with the new ball. So it was the latter part. They played really well in the game as well. Mark, out of 10, where would you say you're at today? 5, 4. Yeah. Frustrating. Yeah. All right. Better luck next time. Thank you. Appreciate it. Thank you, Dustin. Let's get Aaron Finch. Winners are grinners. I know you'll probably be still a little bit thinking you could do more, but hey, you've got the 2 points, got to be happier. Yeah, very happy. Obviously, my innings was unusual. It was poor. I just couldn't hit the ball, but thought the way that we approached it with the bat was fine. We knew that the first 4 or 5 overs with the ball, especially with Kamara nipping it around, it was seeming a long way there. So if we could get through that 1 or none down, that it was going to be really important to set up the back end of the innings. And it would have been nice if I could have kicked on earlier and made that chase a bit easier. But all in all, pretty clinical, I think, with the ball as well. I asked Dustin, quite dramatically different. It felt like the power play, and then maybe a couple of overs later for the seamers, it was difficult to get them away. Yeah, they bowled at hard length. It was tough. I mean, it's such a big ground that you feel as though it's hard to just stand and deliver, and especially with a bit of extra bounce, and when the ball's seaming slightly, you feel it's just not quite as easy to hit the middle of the bat. So that's no excuse for the way I played, but it was nice to get the 2 points. Finchy, what about Stoinis? I mean, just comes out, it's 59 off 18 balls. What did he have for breakfast? Don't know, but it was a pretty special innings. To come out with that intent, I think, is the main thing. When you walk out to bat and you have that presence at the crease, that's half the battle in T20 cricket. And when you've got the skill and the strength that he's got, it's a pretty good combo. Said to Marcus, you don't want to think too far ahead, but of course you go to the G, you're going back personally at home. The English, MCG, yep. Big event. Yeah, it's always a great event, regardless, like any format of the game, anywhere in the world. It's pretty special. So yeah, we're looking forward to it. Finchy, well done. Have a good night. Well done. well done. हाँ जी। और यहाँ पर पूछा गया जिस तरह से फिन से कि आज स्टोइनिस ने ब्रेकफास्ट में क्या किया, लेकिन ये तो डे नाइट मैच था। खन्ना साहब, लंच में क्या किया उन्होंने? बॉलर्स का शिकार किया। अब ये तो वही बता सकते हैं। आई वुड लाइक टू नो कि उसने क्या खाया था। But clearly, he's a special player. There is no doubt. Everyone on the ground, the greats who are commentating, they also know the wicket was difficult. Sri Lankan bowlers, the way they were hitting the deck, bending their back, making life difficult for Aussies who play on these pitches every day, day in and day out. They are brought on that, and Finch couldn't handle it, but he stayed there. The best part is, from one end, he decided, I'm not going to give my wicket. Right. And Maxwell and Stoinis, Stoinis in particular, Maxwell we all know. Stoinis people have not seen. आदेश, ब्रेकफास्ट और लंच में खाया क्या इज नॉट द क्वेश्चन, उन्हें कितनी भूख थी, हाउ हंग्री ही वाज. आई थिंक दैट इज व्हाट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द डायलॉग ऑफ probably the show today. Yeah, no, this is really good. मुझे बहुत टाइम मिला सोचने में. But it was really creative. तो जो मिला उसको खाया उन्होंने. हाँ, बाकी हमारे जो कॉलर्स हैं वो भी हमें बताएंगे वो क्या खा के हमें कॉल कर रहे हैं. आदेश, हेलो. हाँ जी, नमस्कार गीतांजलि मैम, आपको धन्यवाद हमारी तरफ से. नमस्कार जी, नाम बताइए अपना. जी, मैडम नजीर हक बात करता हूँ, आसाम हुजाई. जी, बहुत स्वागत. कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, पहले तो ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका जीत जाएगा, लेकिन टॉनिस ने जो बेहाल बनाया उसका लोगों को तो ऐसा लगता है. लेकिन हमारा मैच 27 तारीख आने वाला, हम जीते. जी बिल्कुल, आप अपनी दुआएं बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए. जाते जाते और एक बात आप सब कहना चाहूंगा जी.
कि हम तक कमेंट्री बड़ा दिक्कत से आके पहुंच रहे हैं, वो सारे चैनल रिलीज नहीं कर रहे हैं, वो जो करते हैं 3-4 मिनट करके वो बाकी प्रोग्राम चलाते हैं, हम लोगों को कमेंट्री पहुंचता नहीं है ठीक तरह। जी, आपकी कंसर्न हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास पहुंच गई है और आई एम श्योर कि आपको आने वाले समय में और क्लैरिटी से चीज़ें समझ आएंगी। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी जुड़ते हैं उनसे। हेलो नमस्कार सर। जी, आप अपने आसपास जो टेलीविज़न या रेडियो चल रहा है उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो। हाँ सर, रेडियो बंद कर दिया। जी, अब बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से बोल रहे हैं? आदेशपुर में नदीम खान बात कर रहा हूँ, गाँव अगवानपुर डिस्ट्रिक्ट मेरठ यूपी से। जी नदीम जी, फरमाइए। हाँ सर, आज ऑस्ट्रेलिया जीत गया और ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड कप का मजा किरकिरा हो जाता अगर ऑस्ट्रेलिया आज हार से बाहर हो जाता। जी हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया का रहना जरूरी है। आप इससे वो एक अलग बात है कि सेमीफाइनल तक। जी, आप सवाल दागिए सीधा। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज स्टोनिस ने जो है बहुत जबरदस्त बैटिंग की है और जी इस तरह की बैटिंग कभी कभी देखने को मिलती है। आज तो इस दिन कोहली ने की, आज स्टोनिस ने की है और मैं चाहता हूँ कि आखिर तक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह ये आखिर तक रहें और हम वर्ल्ड कप देखते हैं। जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी एनालिसिस चलती रहती। खन्ना साहब, आपको लगता है कि कई बार इस तरह की पारियां आती हैं कि सब अभिभूत हो जाते हैं देखकर और फिर सवाल कोई आसानी से सूझता भी नहीं है दिमाग में? उसने सब कुछ खत्म कर दिया, फास्ट बॉलिंग हो या पहले बल्लेबाजी किसने की मैच में, स्टोइनिस होगा। जी, जबकि इट्स अ टीम स्पोर्ट, जी राइट? 2 टीमें खेली हैं, 22 प्लेयर, लेकिन आज स्टोइनिस का दिन है, आज की शाम। जी बिल्कुल। आई वुड से ही वाज सिंपली आउटस्टैंडिंग, यू नो। इस तरह की कभी कभी होती है बल्लेबाजी, बट खन्ना सर ये खिलाड़ी में इतना टैलेंट है। आई रिमेम्बर लिसनिंग टू सौरव गांगुली, हमारा दादा, एंड रिकी पॉन्टिंग 2 years बैक इन यूएई जब आईपीएल वहाँ हो रही थी, आई हैपन टू बी देयर, और ये बैटिंग करने आए, इनको प्रमोट किया था, तो मैंने देखा नहीं था, सुना नहीं था। सौरभ ने कहा खन्ना जी इज़ एन आउटस्टैंडिंग टैलेंट, आप देखोगे। और इसने वहाँ भी मेरा ख्याल 18 गेंदों में जो है 50 कुछ बनाया था, और क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के, कोई आड़े तिरछे, कोई रिवर्स स्वीप या उनकी कोई ज़रूरत नहीं, और क्लियर टाइमिंग एंड बिग बाउंड्रीज वहाँ दुबई के स्टेडियम में, और सेकंड थर्ड टायर पे सिक्सेस हो रहे थे जैसे आज हो रहे थे। जी जी। तो मेरे लिए वो नया नहीं था, बट दिस वाज सिचुएशन को देखते हुए, जैसे कोहली की पारी सदियों तक याद रहेगी, सिचुएशन और आर्च राइवल्स के साथ। आज ऑस्ट्रेलिया को 2 पॉइंट चाहिए थे और बॉलिंग टॉप पे थी उनकी अपने घर के अंदर, वहाँ इस तरह की पारी ये भी काफ़ी देर तक याद रहे। जी, और क्लियरली राजा बहुत इलेटेड फील कर रहे होंगे इस वक्त ऑस्ट्रेलियंस, बट वी रियली कांट फॉरगेट श्रीलंकन्स आर द फोर्स टू रेकन विद, एंड स्पेशली दिस वर्ल्ड कप, एंड दे हैव शोन देयर मेटल इन एशिया कप एज वेल. So obviously few players would be like more highlighted as they would be doing much better, but I would like to have names from you. I mean, who all are the players you feel from these two teams in particular who would be really shining through this World Cup? I think all of them should be wanting to. अगर कोई शाइन नहीं करना चाहता है तो वो घर बैठे। So I think it is unfair to pick 1 or 2 players because as Suri just pointed out, this is a team sport and you want everybody to fire. Right. It's not as if you are dependent on 1 or 2 players. In this match it was Stoinis. Maybe in the next match it will be Tim David who will win it for Australia. Or who knows? The captain himself might do well for Sri Lanka and win the game. जो आप middle order की बात करती हैं, hopefully he will score a few runs and make Sri Lanka win a couple of games as well. So you would want everybody to shine and that is when the team can do really. Yes. और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि कल इंग्लैंड और आयरलैंड और अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे, लेकिन फिलहाल स्टूडियो के दूसरी तरफ एक शीशा भी है और वहाँ हमारी टीम है जो इशारा कर रही है कि अब इस प्रोग्राम से हमें जाना होगा। बातों ही बातों में इशारा हो गया, लेकिन इशारे ये भी हैं कि आने वाले जो मैचेस हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फिलहाल के लिए हमारा जो आज का कल डबल हेडर है ना? जी बिल्कुल, इंग्लैंड और आयरलैंड और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान डबल हेडर मेलबर्न में होगा। It'll be interesting for listeners on All India Radio and Akashvani of course. और ये तो जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए ट्रीट चल रही है। आई थिंक it's a full party time for all of us, all cricket lovers. Thank you so much, Surendra Khanna ji, for being with us. Thank you, Raja. It's always a pleasure. Thank you, Adesh. This is Gitanjali, and thanks to all our team, our technical team with us in the studio. And thank you for joining us, all our lovely listeners. Khush rahiye.
हीरो ऑफ द 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और वीके तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। अभी आप